Good morning dear students. In the previous class we have discussed about the lipids and different types of lipids. Till date we have discussed about different types of organic substances like carbohydrates, proteins and lipids. Out of which we have discussed both micro and macromolecules for carbohydrates, which were oligosaccharides and monosaccharides, that were the micromolecules, and polysaccharides were the macromolecules. Similarly, in proteins we have discussed that the amino acids, which are the building blocks of the proteins, are the micromolecules, whereas the proteins, which are consisting of large polypeptides and number of amino acids, were considered to be macromolecules. We have discussed that the lipids can never have a weight more than 800 daltons. But in the types of lipids, we have discussed some of the simple lipids, the complex lipids, and the third thing that we have discussed is the derived lipids. So three types of organic molecules have already been discussed by us. Now we are moving on to the next type of organic molecule, which are the building blocks of nucleic acids. स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में हर एक सेल में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और डीएनए जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स. बट other than having a role or having the existence in our genetic material, the nucleotides are also having different other functions. Some of them works as activator of enzymes, जिन्हें coenzymes कहा जाता है. Some of them are functioning as a source of energy. For example, ATP, which is adenosine triphosphate. Yes, ATP also is an nucleotide. Some of them function as chemical messengers also in our body. Therefore, nucleotides, apart from having their existence in the genetic material, some will be functioning as energy molecules, some of them will be chemical messengers, whereas some of the nucleotides are considered to be the coenzymes for the enzyme. So here we are going to discuss that what is nucleic acid, and we are going to discuss what are nucleic acids made up of. So nucleic acids are made up of nucleotides, और ये जो nucleotides हैं, they are the building blocks of nucleic acids. Okay, so let us start with it. We will first mention that nucleotides, they are the building blocks of nucleic acids. The most prime role of the nucleotides is they are the building blocks. जैसे हम कहते हैं कि amino acids are the building blocks of proteins, monosaccharides are the building blocks of polysaccharide. In the same way we say that nucleic acid जो है उनके building blocks होते हैं nucleotides. They help in or they serve various purposes. Some are, I am talking about not nucleic acid, I am talking about nucleotides. So some nucleotides are energy compounds. For example, ATP जो है वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है. इसके अलावा some are coenzymes and some are, कई coenzymes की तरह एक्ट करते हैं, कई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, and some are chemical messengers. जैसे कि cyclic AMP, adenosine monophosphate, is a type of chemical messenger. A chemical messenger will be passing on the message
within the cell which function has to be performed. So that we will be discussing about later, okay, what is the role of the chemical messengers in our body. But here you have to remember that some nucleotides like ATP, they are the source of our energy, whereas some of them are the activator of the enzymes. Another thing is that कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो each nucleotide is made up of 3 components. A nucleotide is made up of 3 components. So first we will mention that a nucleotide consists of, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है? So nucleotide has first of all phosphoric acid, मतलब एक phosphate group प्रेजेंट होता है. There is presence of the phosphoric acid. Secondly, एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर होता है. There is presence of a pentose sugar. Pentose sugar means a 5 carbon sugar. And the third thing that is present is a nitrogen base. So there are 3 things present: phosphoric acid, pentose sugar and nitrogen base. ये तीनों को मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है. और जब ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं तब जाके बनता है न्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पे ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनमें से सबसे पहले हम फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड इज नथिंग बट H3PO4, राइट. फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो एक फॉस्फेट ग्रुप है जो अटैच्ड होगा टू द पेंटोस शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पेंटोस शुगर, क्योंकि हमने फॉस्फोरिक एसिड की तो बात की. इट इज H3PO4, राइट. बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, चारों तरफ ऑक्सीजन और एक OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा. पेंटोस शुगर की अगर हम बात करें तो पेंटोस शुगर इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह के पेंटोस शुगर होते हैं. एक होता है राइबोस और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट. राइबोस शुगर होगा या तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा. अब इसमें से ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है या राइबोस शुगर है, दोनों ही हाउ दे आर प्रेजेंट, तो दोनों में ही 5 कार्बन होते हैं और वो एक फ्यूरेनोज रिंग में प्रेजेंट होते हैं. सो वी विल फर्स्ट हियर टॉक अबाउट पेंटोस शुगर. ठीक है, हम पेंटोस शुगर की बात करते हैं तो बोथ ऑफ देम हैव हाउ मेनी कार्बन्स? 5 कार्बन. बोथ ऑफ देम आर हैविंग रिंग स्ट्रक्चर एंड द रिंग इज नोन एज फ्यूरेनोज रिंग. इनकी जो रिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? फ्यूरेनोज रिंग कहा जाता है. और फ्यूरेनोज रिंग में एक ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन होते हैं रिंग में. देयर इज 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन्स इन द रिंग. ओके, सो रिमेंबर 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन इन द रिंग. कार्बन्स इन द रिंग. ओके, तो अगर हम राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है. और फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन से न्यूक्लियोटाइड में राइबोस होता है और कौन से न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस होता है. तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा. So here I am drawing 2 ring structures because as I said, pentose sugar राइबोस है या डीऑक्सीराइबोस, दोनों में कितने कार्बन है? 5. और दोनों कौन से फॉर्म का स्ट्रक्चर है? फ्यूरेनोज रिंग है जिसमें 4 कार्बन रिंग में होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है. So there is presence of CH2OH. I have written CH2OH and H. अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे
and 4। तो आप देख सकते हो कि रिंग में 4 कार्बन है और एक जो कार्बन है वो रिंग के बाहर है, मतलब हो गए टोटल 5 कार्बन। ओके, 4 of the carbons are present in the ring, as I said, 4 carbons in the ring, and the 5th carbon, which is of CH2OH, that is present outside the ring. Okay, so here at the position number 2 there is presence of a hydroxyl group, there is presence of a hydroxyl group, whereas in the case of deoxyribose, in the case of deoxyribose, the rest of the structure remains the same, but at second position there is only a hydrogen and not a hydroxyl group. So we can say that if we want to understand the formula over here, तो इसका formula क्या होगा? C5H10O5, जबकि deoxyribose का formula क्या होगा? C5H10O4, right? So this is the ribose sugar and this is the deoxyribose sugar। मतलब दो तरह के शुगर जो है उसमें एक जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस, उसमें एक ऑक्सीजन कम है, जबकि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों शुगर्स अलग होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कैन हैव आइदर राइबोस शुगर और इट कैन हैव डीऑक्सीराइबोस शुगर, दोनों ही साथ में नहीं होते, राइट? समझिए आप, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो कॉमन ही है दोनों के लिए, वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट? बट पेंटोस शुगर जो है वो पेंटोस शुगर 2 टाइप की है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अब राइबोस जो है उसमें सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे ना। अनदर थिंग इज के ऐसे क्यों कि 2 शुगर्स अलग हैं? तो डीऑक्सीराइबोस शुगर इज अ कंपोनेंट ऑफ विच न्यूक्लिक एसिड? डीएनए। इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। मतलब अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस। कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोस। वापस से सुनिए, हम जब बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए विल बी मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। तो वो न्यूक्लियोटाइड में शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर। पर अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं या तो एटीपी की बात कर रहे हैं या तो कोई दूसरे कोएंजाइम की बात कर रहे हैं, तो इन सब केस में कौन सी शुगर होगी? राइबोस। ओके, सो देयर विल बी राइबोस शुगर फॉर आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉर डीएनए। सो देयर इज अ वेरिएशन, क्योंकि हम डीएनए का फुल फॉर्म क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, which itself says that the sugar present will be deoxyribose, because here at the second position there is 1 oxygen less. So here the formula will be C5H10O4, but here the formula will be C5H10O5. So the ratio 2:1 will be maintained over here, but not over here of hydrogen to oxygen. तो ये हमने बात कर ली पेंटोस शुगर की। मतलब पहले हमने क्या डिस्कस किया? फॉस्फोरिक एसिड, फिर हमने डिस्कस किया पेंटोस शुगर। के पेंटोस शुगर किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, आइदर राइबोस और आइदर डीऑक्सीराइबोस। इनके अलावा फिर कोई 6 कार्बन या 4 कार्बन शुगर्स होते नहीं। फिर हम थर्ड बात कर रहे हैं अबाउट द नाइट्रोजन बेसिस, राइट? तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये हो गया पेंटोस शुगर और ये हो गया नाइट्रोजन बेस। तो अब ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है? नाइट्रोजन बेसेस आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स होते हैं। और एक नाइट्रोजन बेस जो है इट कैन बी मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं।
pyrimidines. अब हम नाइट्रोजन बेसिस के बारे में आगे बात करते हैं that how what will be the structure of nitrogen bases. We will discuss the types of nitrogen bases, purines and pyrimidines, and then we will discuss what is a nucleoside and a nucleotide. कैसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं. So we said that नाइट्रोजन बेसिस जो है वो दो तरह के होंगे. नाइट्रोजन बेसिस will be purines and pyrimidines. अब प्यूरिन्स और pyrimidines में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कौन से नाइट्रोजन बेस को हम कहेंगे प्यूरिन और किसे हम कहेंगे pyrimidine. तो दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स है, पर रिंग स्ट्रक्चर्स में भी दोनों में वेरिएशन देखने को मिलता है. दैट प्यूरिन्स आर 9-membered rings. Purines are 9-membered rings, whereas pyrimidines are 6-membered rings. ओके, तो pyrimidine जो होता है उनमें 9 मेंबर्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें प्यूरिन्स कहा जाता है, और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें pyrimidines कहा जाता है. सो हियर वी कैन मेंशन दैट दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, whereas these are single ring structures. मतलब एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा और एक क्या होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, तब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर्स जो है और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स उनमें पर्टिकुलरली नाइट्रोजन जो है उसकी पोजीशन अलग होती है. जैसे कि ये एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक pyrimidine है, तो pyrimidine में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एट पोजीशन 1 एंड एट पोजीशन 3. pyrimidine में नाइट्रोजन की पोजीशन क्या रहती है, 1 और 3. ठीक है, ये 3 नाइट्रोजन नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन. ओके, सो 1 नाइट्रोजन पोजीशन 1 एंड एट पोजीशन 3. But here you can see that it is present at position 1, 3, at position 7 and at position 9. Okay, because this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन होते हैं. So purines have nitrogen at position 1, 3, 7 and 9. Pyrimidines have nitrogen at position 1 and 3. तो दो ही पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1, 3, 7, 9 मतलब 4 पोजीशन पे. Another thing is that this small ring which is attached to the 6-carbon ring, तो ये जो रिंग है इसे कहा जाता है इमिडाजोल रिंग. दिस रिंग इज नोन एज इमिडाजोल रिंग, और वो इमिडाजोल रिंग pyrimidines में होती नहीं है. सो इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिन, तो प्यूरिन में 2 प्यूरिन्स आएंगे, एडेनाइन एंड गुआनिन. देयर आर 2 प्यूरिन्स, एडेनाइन एंड गुआनिन. और अगर pyrimidines की बात करें तो there are 3 such pyrimidines, that is thymine, uracil and cytosine. तो 3 एग्जाम्पल्स होते हैं pyrimidine के और 2 एग्जाम्पल्स हैं प्यूरिन के. Now a nucleotide will be having any of the purine with a sugar with a phosphoric acid. तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा
that what is a nucleoside and what is the nucleotide. उसे समझने से पहले जस्ट यहाँ पे एक बार ये स्ट्रक्चर्स देख लीजिए. इन योर टेक्स्ट बुक यू आर हैविंग द डायग्राम ऑफ वन यूरासिल एंड यू आर हैविंग अ डायग्राम ऑफ एडेनो. ओके, दो है, पर बाकी के स्ट्रक्चर्स भी इट वुड बी बेटर इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द प्यूरिन्स एंड pyrimidines. ओके, सो guanine and adenine, you can see that over here there is a oxygen and over here there is NH2, whereas here there is presence of NH2 at the position number 4. okay, तो ये हो गया स्ट्रक्चर दो प्यूरिन का, और नीचे के ये जो तीन है ये स्ट्रक्चर्स हो गए pyrimidine. ना जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में इन चारों में से यूरासिल होता नहीं है, राइट. तो यूरासिल जो है मतलब थाइमीन और यूरासिल जो होते हैं वो वेरी करते हैं डीएनए और आरएनए में. बाकी सारे जो नाइट्रोजन बेसेस हैं दे रिमेन द सेम. ठीक है, तो हम पहले न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो आप समझ पाओगे दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस. न्यूक्लियोसाइड. नाउ न्यूक्लियोसाइड मीन्स एक न्यूक्लियोसाइड कब बनता है तो व्हेन पेंटोस sugar combines with the pentose sugar combines with the nitrogen base by a glycosidic bond is known as a nucleoside, right. तो पेंटोस शुगर जिसमें दो ऑप्शन है, आइदर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज. पर जब एक पेंटोस शुगर है दैट इज गोइंग टू कंबाइन विथ अ नाइट्रोजन बेस, तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड. पर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कौन सा हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस इनमें से कोई भी एक हो सकता है. आइदर देयर कैन बी प्यूरिन और देयर कैन बी एनी pyrimidine, but in short a nitrogen base attached to the first position of the pentose sugar will be forming a nucleoside. A nucleoside can be ribonucleoside और deoxyribonucleoside. न्यूक्लियोसाइड क्या हो सकता है, आइदर राइबोन्यूक्लियोसाइड और deoxyribonucleoside, एनी ऑफ देम. अब राइबोन्यूक्लियोसाइड कब होगा, जब अटैच होने वाला शुगर राइबोज शुगर है तो राइबोन्यूक्लियोसाइड. जब अटैच होने वाला शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बनेगा, राइट. व्हेन द शुगर, ये शुगर है पेंटोस शुगर, पर पेंटोस शुगर में दो पॉसिबिलिटी है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज. अगर राइबोज है शुगर तो राइबोन्यूक्लियोसाइड, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड. So here you have to remember this is the nitrogen base and this is the sugar. So combination of nitrogen base with the sugar by formation of a glycosidic bond between them is known as a nucleoside. On the basis of the nitrogen base attached, the nucleosides will be either ribo or deoxyribonucleosides, and even on the basis of the sugar we will be slightly altering their name. For example, अटैच होने वाला नाइट्रोजन बेस है एडेनाइन. अटैच होने वाला नाइट्रोजन बेस है एडेनाइन. तो अगर नाइट्रोजन बेस एडेनाइन है, लाइक दिस आई एम टॉकिंग, ये शुगर है, राइट. और अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें तो वो कुछ इस तरह अटैच होगा फ्रॉम द 9th पोजीशन टू द फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन टू फर्स्ट पोजीशन, पर बॉन्ड दोनों में ग्लाइको
एसिडिक रहेगा। अगर प्यूरिन है तो इस तरह अटैच होगा, राइट, फ्रॉम द 9th पोजीशन ऑफ द प्यूरिन टू 1st पोजीशन ऑफ शुगर। और अगर पिरिमिडीन है तो 1st पोजीशन ऑफ द पिरिमिडीन टू द 1st पोजीशन ऑफ द शुगर। ये याद रखने जैसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 and 1 है और यहाँ पे 9 और 1 है, ठीक है। अब अटैच होने वाला शुगर बेस मान लीजिए एडेनाइन है, तो इस राइबोन्यूक्लियोसाइड को कहा जाएगा एडिनोसाइन। इट विल बी नोन एज एडिनोसाइन। और मान लीजिए शुगर अगर डीऑक्सीराइबोज है तो क्या कहा जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन। इट विल बी नोन एज डीऑक्सी एडिनोसाइन। मान लीजिए अटैच होने वाला नाइट्रोजन बेस गुआनिन है तो दिस विल बी नोन एज guanosine and this will be known as deoxyguanosine. अटैच होने वाला शुगर अगर नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, राइट, तो ऐसे ही जैसे ही अटैच होने वाले वेरी हो रहे हैं वैसे ही यहाँ पे नाम भी थोड़े वेरी होंगे, राइट। एडेनाइन है तो एडिनोसाइन, गुआनिन है तो गुआनोसाइन, साइटोसिन है तो साइटिडीन, ऐसे करके नाम जो है वो वेरी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गई न्यूक्लियोसाइड की बात। पर जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए जो होता है उसमें यूरासिल होता है। सो देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन इन दिस थिंग्स, मतलब जो सारे नाइट्रोजन बेसिस हैं वो दोनों में होते नहीं है। एनी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसमें 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, कौन से, गुआनिन, एडेनाइन, साइटोसिन कॉमन है, क्या अलग होगा, थाइमिन। और अगर आरएनए है तो होगा गुआनिन, एडेनाइन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन होगा नहीं। सो देयर इज अ चेंज इन दिस। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हो गए, ये तीनों कंपोनेंट्स, राइट। तीनों कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे कि एक हो गया फॉस्फोरिक एसिड, एक हो गया पेंटोज शुगर और एक हो गया नाइट्रोजन बेस, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट अ न्यूक्लियोटाइड एंड देन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड। So, if we need to understand about cytosine, तो cytosine के लिए राइबोन्यूक्लियोसाइड क्या होगा, साइटिडीन होगा, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड क्या होगा, डीऑक्सीसाइटिडीन, राइट। तो ये साइटोसिन के लिए है, क्योंकि साइटोसिन क्या है, एक पिरिमिडीन है। अगर हम थाइमिन की बात करें तो आरएनए जो है, मतलब जहां पे राइबोन्यूक्लियोसाइड है वहां पे थाइमिन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसका कोई नाम नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, डीऑक्सी थाइमिन, हियर द टर्म विल बी डीऑक्सी थाइमिन। और अगर यूरासिल है तो यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे यूरासिल का कोई नाम नहीं आएगा। वी कैन नॉट से डीऑक्सीयूरिडीन बिकॉज डीएनए डज नॉट हैव यूरासिल, डीएनए डज नॉट हैव यूरासिल, इसलिए डीऑक्सी, तो पहले ही मैंने कहा कि डीऑक्सी किस में आएगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे तो यूरासिल है ही नहीं, इसलिए इसका कोई नाम नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा यूरिडीन, हियर द टर्म विल बी यूरिडीन फॉर इट। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि राइबोस शुगर, शुगर कौन सी है, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और डीऑक्सीराइबोस का मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं किया, इसीलिए एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। साइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो है उसके साथ सिर्फ शुगर है, फॉस्फेट अटैच नहीं है। अगर यहाँ पे फॉस्फेट भी अटैच हो जाए तो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड,
right? The term will change from nucleoside to nucleotide. So in the next lecture, we will further continue about nucleotides and nucleic acid.